Hello and welcome to Candid Talks with Bharatvi. It's been simply overwhelming to see all you listeners out there giving so much of love and attention to this podcast channel. This is Bharat Vatsa, your host. मैं कोशिश करता रहूंगा कि लोगों की ऐसी ही अनसुनी और अनकही बातें आप तक पहुंचाता रहूं. And I hope you enjoy all my shows to the fullest. In previous episode, we were talking to Vijay Vikram Singh, aka VVS, the man behind the narrator's voice of Big Boss, the reality show. तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. नमस्कार, मैं विजय विक्रम सिंह यानी VVS और आप मुझे सुन रहे हैं कैंडिड टॉक्स विद भारत वीवर. विजय, मीडिया में जैसे मैंने पहले बताया था, लोग अपने रोल खास तौर पे एक्टिंग में फेस वैल्यू से जाने जाते हैं. एंड आप मेनली अपनी वॉइस की वजह से फेमस है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट you went into acting as well. You have done some acting assignments, and one of the recent web series which you did with Manoj Bajpayee sir, Family Man. I mean, that was a superb and mind-blowing web series which I've seen, and I've seen the entire thing, and I'm really waiting for the next season. I do not know when the next season will be coming up. वो एक question आपसे पूछूंगा मैं. But the main question is, what was the main reason behind taking up this acting opportunity? ये कोई प्लान चीज नहीं थी. 2014-13 के आसपास 3-4 साल हो गए वॉइस ओवरिंग करते हुए, तो मुझे लगा कि थिएटर करने से आवाज और अच्छी होगी. Okay. थोड़ा आपको इमोशंस की और पकड़ आती है, तो मैं थिएटर करना शुरू किया. वो करते हुए समझ में आया कि थोड़ी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने बैरी जॉन साहब के साथ ट्रेन किया अपने आप. Okay. प्लेज करने लगा. फिर लगा कि एक एक्टिंग का और फॉर्मेट जो है, एक और एक्टिंग का एक और स्कूल है मेथड एक्टिंग, उसको भी थोड़ा समझा जाए. तो जेफ गोल्डबर्ग के साथ थोड़ा वर्कशॉप कर ली. Okay. तो इस सब के पीछे कारण ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है. धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें मजा आने लगा और ये लगने लगा चलो इससे अच्छा एक यू आर एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ. सी, एक्टिंग इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. व्हेन यू ट्रेन एज एन एक्टर, you get to explore yourself. Right. You get to understand your emotions. You get to understand yourself as a person. And that exercise itself is extremely satisfying, and that exercise itself is very enriching. Okay. तो ये करने में मजा तो आ रहा था. प्लेस भी कर रहा था मैं. फिर इत्तेफाकन कहीं मुकेश छाबड़ा साहब से एक शो में जहाँ जिसमें वो एक्टिंग कोच थे, मैं वॉइस कोच था. मुकेश छाबड़ा साहब is one of the leading casting directors in the industry. Okay. I met him, and when he got to know that I have done theater, and he called me up and says कि आप कभी आए क्यों नहीं ऑडिशन वगैरह के लिए. मैंने कहा साहब टाइम ही नहीं मिलता है. ठीक है, मैं तो जो कर रहा हूँ खुश हूँ. Okay. तब उन्होंने कहा कि आओ एक ऑडिशन करते हैं. He called me for an audition for this Family Man. Okay. And that audition was accepted, approved by Rajan DK, and that's how I got this part. Wow. Then there was another web series. I won't take the name. It's a huge series. Season 2. I'm part of the season 2 of that web series also. A small part. When I saw that web series in 2018, I said, यार इसका season 2 कभी आएगा तो मुझे काम करना है, कुछ भी हो जाता है. And I happened to know the director somehow. अच्छा. I met him somewhere and I realized कि इसका phone number है मेरे पास. I called him up and said, brother, excellent work, but I need to tell you that I want to work with you if there is something. So he told me that all the casting is done for the second season, but still you come meet us. So he called me up and he introduced me to the writing team. Okay. 3 months down the line, they called me for one episode, for one character. Acha. And it was such an amazing experience doing that, to be part of such a big web series. So that's how slowly and steadily, I started getting work. I was supposed to start shooting for my film also with one of the leading production houses in March itself, but it got postponed to April, and then April. Right.
Yeah. So Okay. it was just I would say good. Things just started falling in place. Okay. Never planned, just happened. एक चीज पूछना चाहूंगा. I know that as you said, you were doing theater as well. आपने शायद चाणक्य का रोल भी Yeah, किसी उसमें किया था. yeah. And and I have been following you, by the way. That is the reason I know all these things. So Thank you. एक technical question पूछना चाहूंगा. Like, as a voice actor, when you are into this voice narration, so you have a super command on your voice, and you're totally concentrated when you do this narration. But when you do the acting, how do you keep a balance on your acting front as well as your voice? Because when you actually get into the acting, you kind of tend to lose focus on the voicing, and कि भाई मेरा acting अच्छा रहे, उसमें voice कैसा जा रहा है, उतार चढ़ाव, उसका control वो आप कैसे करते हैं? How do you manage? Do you practice that before each of the scene, or how do you do that? So see, it's a wonderful question and a very technical one at that. People assume that since you're a voice artist, you would be able to pull it off very easily. Unfortunately, it doesn't happen that way, because when you do a voiceover, you're doing it in front of a microphone. Yes. Which is designed to capture all your emotion and the details of your voice, whether it's said in the most the lowest of volumes. It captures all the emotion. Whereas when you're on the stage, you have to project your voice. Even the most emotional scenes have to be projected in a certain way. You have to project your voice in a certain way for it to reach the last, bench. last row, last bench. So you have to work on it. Because when I started, the first show that we did of Alexander versus Chanakya, I could not be heard. I could not be heard in the last row because I'm not used to projecting so much. But I'm trained to use my voice. So when I got to know that this is a shortcoming, I worked on it and it was easy for me. Okay. But yes, it's something that you have to consciously work on to get it right. Right. See, when you're in front of the camera with a microphone that is plugged in your shirt, it is still easy. I know how I can play with my voice with a microphone which is there right under my nose. Okay. I know how I can use my lows. How I can, do an emotional scene by lowering my voice and जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि नीचे के नोट्स कैसे आप पकड़ के इमोशनल सीन्स को कर सकते हो. लेकिन जब स्टेज पे होते हो आप, तो वो लिबर्टी आपके पास नहीं होती है. Okay. तो you have to specifically train yourself. तो वो फिर it's again a liberating exercise. You are exploring another facet of your personality, of your talent. Okay. Yeah, because since to an extent I am associated with this media, this glamour world, so ये एक question मुझे बहुत ही ये कि मेरे दिमाग में घूमता रहता था, कि how the voice thing can be controlled while you are doing the acting. So and I actually, frankly speaking, मुझे कभी इसका कोई जवाब नहीं मिला आज तक कहीं पर भी, किसी से भी. So that was one thing which I wanted to ask you, because you being in both the fields of this industry, so I thought let me just ask that. नमस्कार, मैं विजय विक्रम सिंह यानी VVS और आप मुझे सुन रहे हैं कैंडिड टॉक्स विद भारत वीपर. So जैसा हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, so आपका वॉइस की दुनिया में कोई रोल मॉडल है? Is there any voice which you follow, जिसको आप वो शुरू में तो मैं बहुत करता था.
अच्छा, और उसकी वजह से मेरे को परेशानी भी होती थी। कैसे? दर्पण मेहता साहब हैं, मैं बताता हूँ। दर्पण मेहता साहब हैं जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर में ट्रेन भी किया था, और मैं उनसे बड़ा मुतासिर रहता था। मैं उनको सुनता था और मुझे लगता था वाह यही तो वॉइस ओवर है। अच्छा, और फिर सबकॉन्शियसली कब मैं उनको इमिटेट करने लगा अच्छा, वो मुझे पता ही नहीं चला। तो शुरुआती दौर में वो उनकी आवाज है, वो उनका तरीका है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि राइट, किसी का भी अंदाज उसका अपना होता है। आपको अपना अंदाज ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको डेवलप करना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि अगर आप किसी के क्लोन बनोगे तो क्लोन बन के आप फिर थोड़ा ही दूर जा सकते हो, एग्जैक्टली। तो आपका खुद का वजूद नहीं रहता, फिर यू आर उसका वजूद नहीं सीइंग रहता। इन दैट अदर इमेज, पर्सनालिटी। यस यस, ये आई एम सॉरी, ये हमेशा इनको जो है हाय, हर वीडियो कॉल में इनको इसको तो शी इज याद भी नहीं ऑलरेडी होगा। मैं तो जब मिला था तब तो ये बहुत छोटी सी थी मेरे ख्याल से। तब ठीक है ये, हाँ नहीं तब थी, छोटी सी थी। तो इनकी वजह से लॉकडाउन में बड़ा आसानी से कट जाता है क्योंकि ये बहुत एंटरटेन करती रहती हैं। वो 5 महीने के हैं तो वो तो खैर फुल टाइम एंटरटेनमेंट है ही है। और वाइफ ने तो ठान रखा है कि अब जो है सारे जितने भी रेसिपीज हैं वो सब अभी ट्राई कर डालने हैं। तो मतलब बड़ा मुश्किल है, किसी तरह से वजन मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो आप घर में कुकिंग वुकिंग भी हेल्प करते हैं अभी? कोशिश करता हूँ ओके, और so coming back to that या, imitation thing, so दर्पण साहब को मैं पता ही नहीं चला, मैं उनको इमिटेट करने लगा कितना ज्यादा। ओके, और जब आप इमिटेट करने लगते तो आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, आप अपना रेंज भूल जाते हो, आपकी अपना टैलेंट जो साइडलाइन हो जाता है। राइट, तो ये थैंकफुली मुझे रियलाइज हो गया और मैं फिर उसको मैंने छोड़ दिया, उनको इमिटेट करना छोड़ा। और उस चीज का एहसास हुआ कि अपनी आवाज पहचानना और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ओके, पर एडमिरेशन की अगर बात है, अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को एडमायर करता हूँ, बहुत सारे लोगों से सीखता हूँ, नकल नहीं करता उनकी, सीखता हूँ। मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, मुझसे थोड़ा छोटा ही है, हालांकि ही स्पेंड मोर टाइम इन द वॉइस इंडस्ट्री। अंकुर देसाई इज वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस एट फिल्म वॉइसेस। उसने जिस तरह से अपने को, उसकी डिलीवरी स्टाइल बहुत ही अलग है और बहुत ही ग्रैंड, एंड he's got a very beautiful voice and got a great command on his voice. उनको बहुत मैं फॉलो करता हूँ। इमोशनल नरेशंस जो हैं बच्चन साहब जिस तरह से कर ले जाते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। पीयूष मिश्रा जी, रघुवीर यादव, ये लोग जो करते हैं, तो इन लोगों को भी सुनना। विजय राज, विजय राज is a very good actor and a wonderful voice over artist as well. विजय राज इज द सेम पर्सन जो कौवा बिरयानी, अगर आपको एक आइकॉनिक सीन याद हो, एक फिल्म थी, भैया एक कौवा बिरयानी खिला दिया बे ये एक रन करके एक फिल्म थी। फिर अभी गली बॉय में रणवीर सिंह का फादर, ही प्लेड रणवीर सिंह फादर। हाँ जी, हाँ जी। तो he is one of the leading voices, so his narration is again, it's very hard hitting, it's beautiful. So these are people I admire, look up to. Okay. So आपने बच्चन साहब के बारे में बोला, तो उनकी एक फिल्म है सिलसिला, उसमें से कुछ लाइनें अगर आपको याद हो तो कुछ सुनाएंगे हमारे लिए? ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई है। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है तुम यहीं कहीं। Amazing, amazing, awesome. So Vijay ji, what would you like to call yourself as? I mean, would you call yourself as a voiceover artist or an anchor? You have done radio jockey as well. You have been a radio jockey, or as an actor. I mean, आप अपने आप को out of this profession क्या बोलते हैं? लर्नर तो खैर वो तो हर एक मैदान में, वो तो हर फील्ड में तो लर्न रहते हैं। I mean, we to learn till we die, but
एक्चुअली एक्सप्लोरर इज द राइट वर्ड, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सप्लोरेशन से आई हैं. मतलब जब मैं वॉइस ओवर शुरू किया उसके 5 साल पहले तक मुझे पता भी नहीं था वॉइस ओवर होता क्या है. किसी ने वो स्पार्क दिया तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया. और आया इधर. फिर अभी इधर आने के बाद मुझे लगा, and I am also a businessman because by virtue of what my professional degree, I'm also a businessman, so I understand commerce. I understand that creativity comes out of a full stomach and out of fulfilled desires. Okay. ठीक है. तो मैं इस क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं लेके रहूंगा. लेट मी आस्क यू इन अ डिफरेंट वे विद अ ट्विस्ट. ओके. Out of this profession, which is your passion that gives you a kick? Voicing. Okay, I got my answer now. Yeah, everything else is because of voicing. Okay. But if I have to choose, and if I have the option to choose, till now I've been lucky कि मुझे choose करना नहीं पड़ा, मैं रास्ते निकालता चला गया. Okay. जैसे फैमिली मैन सीजन 2 की जब शूट हो रही थी तो बिग बॉस भी चल रहा था. अच्छा. तो मैंने रास्ते निकाले कि वो भी किया और वो भी किया. Okay. पर अगर कभी रास्ता ना हो और मेरे पास ऑप्शन हो कि भैया एक चीज छोड़ दो, एक ही चीज उठा के कर लो, तो मैं वॉइस ओवर ही करूंगा. मुझे ओके. फैमिली मैन का सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है या शूटिंग अभी भी उसकी बाकी है? शूटिंग खत्म हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है. 29 फेब को हमने शूट खत्म किया. तो मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको यार होने में. हाँ, अब तो बहुत टाइम लगा. मतलब पता नहीं कब आएगा, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं. उसके बाद सिर्फ लॉकडाउन ही चल रहा है. ओके. सो विजय जी, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशंस जो आप करते हैं, यू नो, since you have to take out different type of voices with high pitch, low pitch, medium pitch, so what kind of special care do you need to take for your voice? I mean, because voice being your main tool, तो क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए? So बहुत जरूरी है. एक अच्छी बात यह है कि हमको जो रेंज सिंगर्स को एक्सप्लोर करनी होती है वो हमें नहीं करनी होती. हमें तो उसके नहीं है. सिंगर्स में तो सुखविंदर साहब को सुनिए तो उनके जो हाईज हैं, या लो में अगर आप जैसे वो गाना है भरे नैना मोरे भरे नैना, वो बहुत ही लो उसमें गाया हुआ है. उतनी बड़ी रेंज हमें नहीं एक्सप्लोर करनी पड़ती. ओके. तो उसकी वजह से हम बहुत सारी लिबर्टी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रियाज, प्राणायाम, 15-20 मिनट का रियाज. ओके. और कुछ खाना है, कुछ certain kinds of food which over the period of time you realize affects your voice. When you become conscious about your voice, you start exploring and you start realizing that this food has an acidic effect on me, which affects my voice. So you start avoiding those foods, especially before going for a recording. For example, I am very fond of sugarcane juice, but I don't drink it. Achha. If I know that I have to record, I don't drink it, because the moment I drink it, it ages my voice. I start sounding 10 years older. Achha. Now these things you start realizing when you are in this profession. You start realizing all these things. Okay. You become aware. You become more aware about it. So this is the only precaution. I don't drink cold water at all. I always drink room temperature water. Okay. So yeah, I don't smoke, thankfully. So yeah. So as I said, that you have to take out various different voices, and I'm sure that you might have been receiving a lot of requests to mimic voices for of some of the known people, or maybe with various different variations. तो कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे लिए ऐसा कुछ? Yeah, sure. See, mimicry is again a different art form. Unfortunately, I don't do mimicry, but जैसे अगर Welcome to Dance India Dance, आज के इस एपिसोड में देखेंगे एक कंटेस्टेंट, इनके सपनों को तो उड़ान मिल गई, लेकिन क्या अगला कंटेस्टेंट हमारे जजेस की कसौटी पर खरा उतरेगा? आइए देखते हैं.
एक आवाज जिसने सभी के दिलों को छू लिया, वो आवाज आज हमारे बीच किस तरह के झंडे गाड़ेगी, आइए देखते हैं। आगे देखिए और आप ये बात समझ लीजिए कि मैं जब आपसे इस तरह से बात करूं तो वो एक किरदार है, और उस किरदार में पढ़ने के लिए आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये दिस इज समथिंग, मतलब ये अभी on the go, this is what I can recollect. So with these kind of variations, आपको आपके गले पे जोर नहीं पड़ता? Don't you feel any stress? जी, अभी तो मुझे कुछ नहीं, पर हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा हाई जाता हूँ तो फिर आपको वेलकम टू डांस इंडिया डांस, अगर इतना हाई जा रहा हूँ, अच्छा, बट उसमें भी आपको पता है कि क्योंकि माइक्रोफोन के लिए तो थोड़ा कंट्रोल्ड अग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा गले को। पर हाँ, अगर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं फॉल्सेटो वॉइस, अगर आप उसमें जाते हो तब फिर बहुत गला, उसके लिए बहुत रियाज चाहिए। फॉल्सेटो वॉइस ये है, ये आवाज जहाँ पर आप एकदम पतले दुबले साउंड करोगे और थोड़ा सा फेमिनिन भी। तो वो अगर आप लॉन्ग टर्म में उस वॉइस में बात करो अगर 15-20 मिनट, तो फिर गले में बहुत जोर पड़ता है। ओके, सो विजय, which was your best project till date? I mean, whatever you have done. I am not talking about, you know, whatever is there in pipeline or upcoming, but whatever you have done, done till date. किसी एक चीज को वो करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बिग बॉस एक ऐसा शो रहा है जिसमें बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी। ओके, बहुत सारे वेरिएशंस की, इमोशनल वॉइस ओवर्स किया है उसी शो में। पहली बार मैं स्क्रीन पे भी गया, दिखाई दिया, उस शो ने बहुत पहचान दी है, तो वो ऑब्वियसली बहुत करीब है दिल के और हमेशा रहेगा। सोनी के कुछ शोज, इंडियन आइडल के कुछ वॉइस ओवर्स मैंने किए हैं, और बहुत बहुत ही उस शो ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है अब मेरे अंदर के इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करने की। प्लस इंडियन आइडल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, तो ये कुछ शोज हैं जो बहुत करीब। डांस इंडिया डांस हमेशा करीब रहेगा, वो पहला शो था मेरा जीवन का। अच्छा, सो बिग बॉस का आपने बोला बहुत सारी यादें हैं, तो कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया बिग बॉस, कोई भी सीजन ले लीजिए आप, कोई ऐसा वाकया जो आप अक्सर याद करते हैं? हम लोग जब लोनावला में थे तो मतलब अब तो बॉम्बे में शूट करते हैं, लोनावला में बहुत मजे होते थे क्योंकि सब लोग वहीं रह रहे हैं। अभी जैसे अभी काम है, सेट पे गए, वापस घर आ गए। जब आप लोनावला जैसी जगह में रहते हो तो you stay there as a family. Okay. You go on the set, meet the same people. You come back, you meet the same people. You know, there's a different lifestyle that you lead. So वो चीज कभी-कभी मिस करते हैं कि खाना बनाते थे अपने लिए, खुद के लिए, शौकिया। और शुरू होने वाली है। ओके okay, thank you. So she's just is come here to inform that रामायण शुरू होने वाली है, तो मैं दूसरे कमरे में चला जाऊँ। Okay. So मुझे बताया जा रहा है कि we are also almost done. So वो चीज जो है वो लाइफ मिस करते हैं कभी-कभी। अच्छा, you become kind of a small family, you know. I mean, इतने महीनों आप इकट्ठे रहते हैं, तो डेली उठना बैठना। Yes. It's a hostel life. It's a beautiful hostel life that you get to live at the age of 40. Okay. So आपने एक नाम लिया था शुरू में, you know, दर्पण मेहता सर। So I'm assuming he was your mentor? He initially was, and then Kodas Wadia, he was the one who so I'm sorry, this is the new art. Wow. So she has what to are these? Balloon? Yes, balloon. Wow. Okay. That's nice. Thank you. You drew this with crayons or watercolor? Sorry? Crayons. That's nice. Awesome. Okay, thank you. Goodbye. Okay, so Darpan Mehta was the one who initially taught me, and then Kodas Wadia who mentored me later. So these are the two people who I look up to still.
Okay. And if I may ask you about your main strength behind you, your success, whatever you have achieved so far, whatever you have been doing, who is your main pillar? Oh, it has to be Gitanjali because शुरू में भी बहुत support किया और अभी भी जब भी whenever you there are lows, there are times when things are not working out. I'm sure, yeah. Or certain project you wanted and they don't come to you. Okay. She's got a very positive outlook. So she's my sounding board. So whatever I feel, I just sound it off to her, and she always comes up with solutions. I'm sure. Okay, please give my regards to her. And, yes. चलते चलते विजय जी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जी। विजय विक्रम सिंह, ये जो नाम है, आई मीन इस नाम का आपके जीवन में क्या मतलब है और विजय विक्रम सिंह के जीवन का फलसफा क्या है? अभी तो देखिए इस नाम का मायने बहुत ज्यादा है। मेरे ग्रैंडफादर ने ये नाम दिया था मुझे। ओके। और ये नाम मेरी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन चुका है। लोगों को बड़ा पसंद आता है भारी भरकम आवाज के साथ भारी भरकम नाम। तो पता नहीं उस समय उनके जहन में क्या रहा था, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया ये मुझे बड़ा ही प्रिय है। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म जब से आ गया है VVS। आई मीन एकदम रॉयल टच है इस नाम में। जी, उनका भी आइडिया यही था कि राजपूत है तो राजपूताना नाम होना चाहिए। राइट। तो obviously I'm very close to it. And second question was, what does it आपके जीवन का फलसफा? फलसफा तो मतलब वो यही है कि एक्सप्लोर करते रहें। ओके। एक्सप्लोर करते रहें, कहीं किसी एक जगह पे रुके नहीं। ये मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ ना कुछ नया जो है आगे है। अगर आप एक्सप्लोर करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नया आप करते रहें। तो ये इस चीज के साथ ही मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ। अमेजिंग। हमारे लिए कुछ एडवाइस आपके लिए? There's nothing. Explore. It's very important to keep exploring and figuring out कि भाई अगर ये चीज नहीं पसंद आ रही है, अगर मुझे धक्के देके निकाला जा रहा है, तो उस काम के अलावा क्या है जो जिसमें मुझे धक्का नहीं देना पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन at the same time ये भी बहुत जरूरी है ये एहसास करना। कई बार क्या होता है कि हमें पैशन तो मिल जाता है, पर पैशन का कॉमर्स के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी रोजी रोटी चलेगी। एब्सोल्युटली। तो कई बार पैशन आपका प्रोफेशन नहीं भी बने तो कोई जरूरी नहीं, प्रोफेशन अपना जारी रखिए। पैशन को अपने साथ चलने दीजिए। पैशन इज द थिंग व्हिच विल गिव यू दैट मोटिवेशन टू कीप डूइंग दैट मंडेन, दैट डे टू डे जॉब। ये जो आखिरी लाइन आपने बोली है ये ना मैं अपनी वाइफ को जरूर सुनाने वाला हूँ। नहीं, पैशन तो जिंदा रखना है साहब। उम्र लंबी करनी है तो शौक जिंदा रखिए। एब्सोल्युटली। इसलिए तो मैं राइड करता रहता हूँ। डीजेइंग, then I'm doing this podcast. I do not know what all I'll have to do in future. So let's see. Please keep doing. And it might not. It doesn't have to be necessarily commercially, very successful or commercially enriching for it to be called successful. If it makes you happy, it's good enough. Yeah, absolutely. So, Vijay, this brings us to the end of this show. It was really so very nice. After so long, we met and I was speaking to you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. And thank you so much, for joining us today on this episode. And we wish you all the very best for all your future endeavors, all the upcoming shows. All the very best to you and all your future. And I hope you stay home, stay safe. And thank you so much for joining us today. Thanks a lot. See you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. शाम 6 बजे भारत ने सभी लिसनर्स को ये आदेश दिया कि वो कैंडिड टॉक्स विद भारत बी के सभी एपिसोड्स को जरूर सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट चैनल है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सारे एपिसोड्स को फॉलो और लाइक करें। So that was Vijay Vikram Singh, AHA VVS.
the man behind the narrator's voice of Big Boss, the reality show. आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. Please do like, subscribe and share if you liked it. इसके साथ हम आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं. बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में on Candid Talks with Bharat V. Stay home, stay safe. This is Bharat Vatsa signing off for today. दुआ में याद रखना. जय हिंद.